As much as I can remember till this moment, the first day of the lockdown here in West Khasi Hills, especially in our subdivision, uh, it was started here in Meghalaya, the lockdown on the 17th of March of 2020. And the moment we have heard this message that there is a very risk situation for the students and for teachers to meet together, we were afraid like anything that we could never experience before. This is the first time of emergency for us, especially for me in my life. And what we have done for some weeks of the same month, we thought we have lost everything, including the education of my own children. And then after some times, we have discussed with our staff in our office. At least we should do something for the students. And after we have discussed something, Right. uh, we just called to different teachers and managing committees of the school. Even though we have nothing to do beyond the authority given by the government, but at least something to be done. Even though we cannot meet face to face, or you cannot meet face to face, at least you do something. You may prepare, I told them, a very simple note with simple questions, simple answers, and send to their homes. And they have been doing that. Even though not all of them, they managed to do that since most of the villages in our subdivision, they are not with the phone connectivity also. So in that case, as much as we could manage to inform and to communicate to them, they have been doing. And after some time, we received also the letter from the government to do something online and even offline also. And from that time, the teachers and the managing committees, they responded in a better way than before. Because before at the beginning, when we instructed from our office, they said you have done this on the basis of your own strengths, but not from the government. And at that time, I told them it was my advice only. If you wish to do for the benefit of the students, benefit of your own children also, because your children also are studying in the same schools. If not in the same school that teachers are teaching, but at least their children, they are studying in some other schools. So for the sake of your own children and for the sake of others, you please do something. And they have done. And then after some time that we have got the letters, one letter after another letter from government. When we send to the managing committees, they have been responding in a much better and better way. And they even arrange some tests for students also. Those with phone connectivity, those parents with WhatsApp phone, they receive those study materials. Some of the teachers they prepared in the form of video clips. Some they prepared notes. They took photo in the mobile and sent to the parents. And those parents, along with their students, they studied together. They responded. They wrote the um, answers, and they sent back to the schools. And for those parents without phone connectivity, without WhatsApp, teachers prepared the notes, simple notes. They send in an envelope to the parents, and parents, along with students, they did the exam. They're in their homes only.
And they, after completing the exam, they sent back to the school, and the school did the assessments or rectification, and they give the results in that way. And with that, parents have been increasing in their cooperation with the school authorities, and they are also happy. And they said, even though we have not been able to perform the classes properly, but this is good since something is being done for our children, they said. And the idea is that even though the exam was being done at their homes, we understand that if the questions are being answered at home along with parents, if the students pass, parents also pass. But if students fail in their exam, it means also that parents fail. So this is good to some extent, ma'am. Here in our division, we have very few villages with telephone connectivity, with mobile connectivity. And almost, so to say, 75% of the villages, they are without mobile network. So most of the teachers, they have been sending their uh, offline assignments to the families of those students. And we have seen for the first time that the online classes being done by teachers, they also help us, because previously we never experienced that online classes with video clips, with this, with that, and our children are enjoying to see their miss or sirs performing on the blackboard, and they explain as if they explain to that particular student only. So they felt that this is very special for me. Some of the students, including my children, they said, Miss is doing very special to me. Previously, before this uh, online teachers training being informed to me uh, by Madam Malini, I did not know anything of this. But one day when Madam Malini called me, she said, I got your phone number from Secretariat from Meghalaya, from one of my friend. And I said, okay. And she said, I got a letter from your director, from our director, Sir Ambrose C.H. Marak, being sent to her asking uh, for first time 25 teachers for online training. And then after some time, when we have sent the list of 25 teachers as per criteria that uh, put forth by our director, she again asked for 4 or 5 teachers, and we have sent for 5 more teachers. So total of all, we have 30 teachers. And the moment that training of teachers online was being done, teachers have been very curious. They said this is the first time ever that we have been training through air. Previously, we went for training and we sat face to face in a room, but now we have been getting the chance, the opportunity to have a training through air. And this is very good, they said. So in that case, they have been participating from time to time. And then after that, when some teachers, they were not able to join on a particular day, Madam Melanie called me, if you can at least sensitize them to some extent to have a more participation. And I told Madam Melanie, yes, yes, I will put forth my message to the group. And more and more teachers, they participated. And even those who are outside that list, they were eager enough to join in the group.
And when the Diksha training comes and other online training also came, teachers were joining in a big group. And the initiative being started by your society, it really helps for other teachers online training also. Actually, I did not know much of that, but as I have heard, because I did not get the opportunity to participate in that Parshala training, Yes, sir. except one day. One day I participated, but it was a very busy day when we have to do this, we have to do that side by side with the training, and sometimes on, sometimes out from the room due to very busy schedules. But it was very interesting. At the same time, since the length of the training was very long, we could not also manage to get all of those. But we really enjoyed. Myself and my higher authority, Madam R. Kong Wang, who is my DSEO, we participated together in the same room in her chamber, and we really enjoyed to have seen from different parts of our states participating in the same training when we could not meet face to face, but we could meet only through air. So this is very important. But we could not manage to remember all. But if a book may be printed and circulated to us, we may recover back all those memories of that training also. Really, we have been waiting for a better improvement in all the schools. If possible, to get the mobile connectivity in all the villages, that will help us very much in promoting this. Since at present we have very few villages with mobile connectivity, and with WhatsApp uh, mobiles in few of the families, since our families are poor in rural areas, and most of the parents, they could not afford to buy mobiles with WhatsApp also. But even then, after they have seen how much the importance of learning through uh, online teaching learning process, the parents have been struggling at least to have one mobile with WhatsApp in one family. But the problem now is that the mobile connectivity is very rare. सादर प्रणाम। मेरा नाम हेमंत कुमार यादव है। मैं जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से स्नातक किया है। मैं जनपद फिरोजाबाद का निवासी हूँ, जिसे पूरे देश में चूड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। मैं विगत 5 वर्षों से जिला बहराइच के विकासखंड बलहा में स्थित शन विलय विद्यालय चंदनपुर खास में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विषय के अध्यापन का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। यदि बात की जाए जनपद बहराइच की, तो सोशल इंडिकेटर्स जैसे शिक्षा, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य में जनपद बहराइच की स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती। चूँकि मेरे विद्यालय में सभी छात्र पारिवारिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहते हैं, जहाँ कृषि ही आय का एकमात्र साधन है। अध्यापन के प्रारंभ से ही मैंने यह जान लिया कि सभी छात्र समान रूप से सभी विषयों में रुचि नहीं ले रहे हैं। किसी को गणित में तो किसी को अंग्रेजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे में बच्चों के मन में किसी न किसी विषय के प्रति जागरूकता की भावना पैदा करना हमारा पहला उद्देश्य था। इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने ZIIEI
के ट्रेनिंग प्रोग्राम का सहारा लिया और बहुत सोच विचार के बाद श्री अरविंदो सोसाइटी के शून्य निवेश नवाचार सम्मिलित किए। श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रोग्राम से प्रभावित होकर हमने 10-10 बच्चों की एक टोली बनाई। ये टोली एक विषय को लेकर थी, जैसे गणित को कठिन समझने वाले छात्रों की एक टोली तथा हिंदी को कठिन समझने वाले छात्रों की एक टोली। हर टोली को पाठ्यक्रम से क्वेश्चन बैंक तैयार करने को कहा गया। इसके बाद सभी टीमों को आपस में बैठाकर क्विज कराई गई। इससे बच्चों को अपनी टीम को जिताने के लिए कठिन प्रश्न बनाने का भाव मन में जागृत हुआ और प्रश्न बनाने के लिए पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। इससे कक्षा के स्तर में एक रूपता आई और टीम में रहने से नेतृत्व की क्षमता जैसे गुण भी सीखने को मिले। यहाँ यह भी जानने योग्य है कि बहराइच उत्तर प्रदेश के सामाजिक रूप से पिछड़े जिलों में से एक है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी कम है। यहाँ सरयू एवं घाघरा नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। ऐसे में सरकार, एनजीओ और कई सामाजिक संस्थाओं के बाद भी जागरूकता की कमी महसूस हुई। ऐसे में पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ साथ बच्चे सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिहाज से श्री अरविंदो सोसाइटी के निर्देशन में रोगों की कहानी बच्चों की जुबानी नवाचारी कैंपेन शुरू किया। इसमें अध्यापकों के साथ बच्चों द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के चार्ट पर प्रस्तुति तैयार की, जिसमें रोग के कारण निवारण के बारे में गांव में घर घर जाकर संदेश दिलवाया। इस क्षेत्र में यह अपने प्रकार का पहला प्रेजेंटेशन था और लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई। स्थानीय मीडिया एवं अखबारों ने इस कैंपेन को हाथों हाथ लिया और विद्यालय के बच्चों को सामाजिक पहचान मिली, प्रोत्साहन स्वरूप उपहार प्राप्त हुए, जिसके बाद अन्य छात्रों में प्रतिस्पर्धा स्वरूप भाव जागृत हुआ और उन्होंने अन्य रोगों पर ऐसी प्रस्तुति तैयार की। किसी भी शैक्षिक गतिविधि का अंतिम उद्देश्य केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण ही होता है। मेरे स्कूल ज्वाइन करने के कुल वर्ष नामांकन 67 से आज 250 हो चुका है। विद्यालय के कायाकल्प, बाउंड्री वॉल, स्मार्ट क्लासेस आदि के जरिए ड्रॉप आउट की समस्या को रोका जा चुका है। ZIIEI के प्रशिक्षण के उपरांत हमारे विद्यालय के बच्चों का पढ़ने और हमारे पढ़ाने के तरीकों में सुधार हुआ। नवाचारों के प्रयोग तथा लर्निंग आउटकम के आधार पर गत वर्ष हमारा विद्यालय का चयन राज्य स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में हुआ। एक अध्यापक के नाते मेरा सदा यह फर्ज रहेगा कि मेरे विद्यालय सदैव उत्कृष्ट विद्यालय रहे और मेरे सभी विद्यार्थी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पूर्ण कर समाज के कल्याण में अपना योगदान दें। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सीमा मौर्य है। मैंने परास्नातक किया हुआ है MA एजुकेशन से और मुझे अभी तक शिक्षा जगत में 2 वर्ष हो रहे हैं। और मैं जिस जिले में कार्यरत हूँ यानी कि बहराइच की यह विशेषता है कि यहाँ पर करतनिया वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है जो कि बहुत ही मनमोहक है और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व की सूची में भी डाला गया था। इसके अलावा हमारे बहराइच में हजरत गाजी सैयद सलार मसूद जी की काफी फेमस दरगाह भी है। साथ ही साथ हमारे यहाँ मरी माता का मंदिर भी है जहाँ पर प्रतिदिन सोमवार और शुक्रवार को भक्तों की भारी भीड़ लगती है। मैं संविलियन विद्यालय रेतीहाता जरवल में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 233 बच्चे पढ़ते हैं और वे सभी बच्चे ग्रामीण प्रवेश से आते हैं। और जब मैंने शुरू में विद्यालय ज्वाइन किया तो मेरे विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बच्चे पहली बात तो बहुत कम आते थे और
जो बच्चे आते भी थे उनमें ठहराव नहीं था, यानी कि वो रुकते नहीं थे विद्यालय में। तो और जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIE के कार्यक्रम से परीक्षण प्राप्त किया, तो मुझे पता चला कि कैसे बहुत ही कम खर्च में हम डिफरेंट तरह के नवाचार करके अपने बच्चों की शिक्षा में सुधार ला सकते हैं। और आगे चल के इनोवेटिव पाठशाला के पाठ्यक्रम से परीक्षण के बाद मुझे यह पता चला कि मैं अपने विषयों को कैसे विभिन्न गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकूं। श्री अरविंदो सोसाइटी से जुड़ने के बाद मुझे बच्चों को पढ़ाने में काफी मदद मिली। जो गतिविधियां मेरे दिमाग में पहले चला करती थीं, उनको बच्चों के साथ कैसे क्रियान्वित करें, यह चीज हमें ZII के माध्यम से पता चला। कोरोना काल में, और जो ये कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई इस वक्त हम सभी जान रहे हैं पूरी तरह से बाधित है, तो ऐसे में अरविंदो सोसाइटी के साथ जुड़ने के बाद हमें यह पता चला कि हम बच्चों को कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से पढ़ा सकते हैं। और अरविंदो सोसाइटी ने हम लोग को जैसे 3-4 पाठ्यक्रमों के बारे में बताया कि कैसे हम उन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया था कि हमने सांप सीढ़ी वाला एक गेम था जिसको हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो जो कि हम सभी शिक्षकों को इस वक्त, यानी कि जब हमारा पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, तो ऐसे में हम बच्चों की जो पढ़ाई है उसको कैसे निरंतर जारी रखें, उसके बारे में भी हमारा जो अरविंदो सोसाइटी वो हम सभी शिक्षकों को काफी मदद कर रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि ZIIEI के प्रशिक्षक मिस्टर विवेक श्रीवास्तव सर ने मेरी बहुत ही मदद की। मैंने अपने सभी आइडियाज को उनके साथ साझा किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं कैसे उसको बहुत ही सरलता से अपने विद्यालय में लागू कर सकूं। जो मेरे विद्यालय की जो समस्या थी उनको मैंने कैसे दूर किया, मैंने अपने टीचिंग टेक्निक्स में बदलाव लाया। जो परंपरागत तरीके से हमारे स्कूल में बच्चों को पहले से पढ़ाया जा रहा था उसको मैंने बदला। मैंने अपने स्टाफ को भी ये चीज बताई कि हमें इस तरह से नहीं पढ़ाना, हमें उन्हें सिर्फ काम नहीं दे देना है, हमें उन्हें तीनों तरीके से पढ़ाना है, यानी कि उन्हें उनके तीनों चीजों को कॉन्सेंट्रेट करना है, यानी कि उनके लिखने की भी जो प्रक्रिया उसको भी सुधारना है, उनके बोलने की और देखने की, यानी कि उनके रिकॉग्निशन पे मैंने थोड़ा सा काम किया। उसके बाद मैंने प्रतिदिन फिर धीरे धीरे एक कार्यक्रम चलाया अपने विद्यालय में जिसको बोलते हैं चाय पे चर्चा। उसमें क्या होता है, हम अभिभावकों को बीच बीच में बुलाते हैं, जो बच्चा कमजोर होते हैं उनके पेरेंट्स से हम चर्चा करते हैं कि हम कैसे इस बच्चे की प्रगति को कैसे और अच्छा कर सके, कैसे वो बच्चा इतना, क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिससे वो बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो उसको जानने की कोशिश करी और उसको फिर सुधारने की पूरी कोशिश करी। उसके बाद जो बड़ी लड़कियां हैं, यानी कि कहा जाए 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए मैंने व्यवसायिक शिक्षा पे थोड़ा सा फोर्स किया कि हम उन्हें व्यवसायिक शिक्षा दें, जिससे उनकी संख्या भी बढ़ेगी और उनको एक अलग सा क्रेज भी होगा, हम कुछ नया सीख रहे हैं। मैंने उनके सीखने में जैसे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करी, मैंने उन्हें कुशन्स बनाना सिखाया, लिफाफे बनाने सिखाए, साबुन बनाना सिखाया, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इस तरह के जो चॉकलेट्स बनाना हुआ, किस तरह से वो उस चीज को बनाए और उसको मार्केट तक सेल आउट कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मैंने उनके साथ प्रैक्टिकली करने की पूरी तरह से कोशिश करी, तो जिससे उनके अंदर ये आया कि हाँ, जो हमारी एजुकेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं आसानी से आगे चल के क्रियान्वित कर पाएंगे। उसके बाद इसका एक मुझे बहुत फायदा और मिला, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे, यानी कि जो 8 के बाद कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो स्कूल अपना कंटिन्यू नहीं करती हैं, लेकिन हाँ ये होता है कि वो सिलाई सीखना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो वो बच्चियां भी मेरे साथ इन कार्यक्रमों में जुड़ती रहीं। तो इसका एक मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने कुछ ना कुछ मैं सिखा पाई, वो बच्चे जो है मेरे तक स्कूल के माध्यम से जुड़ पाए। इन सभी कार्यों में श्री अरविंदो सोसाइटी ने मेरी बहुत मदद करी। तो मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और SDFC के द्वारा यह जो मंच प्रदान किया गया है हम शिक्षकों को, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हम टीचर्स का ये सहयोग और हौसला बनाए रखें। और
धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार मिश्रा है। मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से विज्ञान स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र विषय में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है। मैं बहराइच जनपद का मूल निवासी हूँ। बहराइच जनपद की विशेषताओं की बात करें तो बहराइच जनपद हिमालय की गोदी में स्थित गाजी गौतम की जमीन, महाराजा सुहेल देव, बालार्क ऋषि तथा अष्टावक्र मुनि की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। बहराइच जनपद में कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर स्थित है। प्रत्येक वर्ष यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। दूसरे पर्यटन स्थल की बात करें तो बहराइच के दरगाह में स्थित सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मई जून के महीने में एक विशाल मेला लगता है। अन्य पर्यटन स्थलों में बघेल तालाब, चित्तौरा झील, अनारकली झील भी प्रसिद्ध हैं। धार्मिक स्थलों में मरी माता मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, संघान माता मंदिर आदि भी प्रसिद्ध हैं। मैं सम्मिलन विद्यालय चंदनपुर, विकासखंड बलहा, जनपद बहराइच में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 240 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। सभी छात्र छात्राएं ग्रामीण प्रवेश के हैं। मुझे बेसिक शिक्षा परिषद में कार्य करते हुए 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। मेरी समस्या थी कि मेरे विद्यालय में कुछ बच्चे विद्यालय नहीं आते थे। जब मैंने श्री अरबिंदो सोसाइटी के शैक्षिक नवाचारों एवं गतिविधियों को अपने विद्यालय में लागू किया तो वो बच्चे विद्यालय आने लगे। जब मैंने श्री अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया तब मुझे पता चला कि कैसे बिना पैसे खर्च किए हुए शिक्षा में शून्य निवेश करते हुए हम अपने बच्चों को प्रभावी और रोचकतापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। जब मैंने श्री अरबिंदो सोसाइटी के इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण श्री विवेक श्रीवास्तव सर के द्वारा प्राप्त किया तब मैंने अपने बहुत सारे विचारों को उनके साथ साझा किया। उन्होंने मेरे विचारों को सुधारने में काफी मदद की। श्री विवेक श्रीवास्तव सर ने इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के अंतर्गत श्री अरबिंदो सोसाइटी के बारे में नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, NCF 2005 के बारे में, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, 21वीं सदी के कौशलों के बारे में बहुत ही विस्तार से एवं प्रभावशाली ढंग से बताया। श्री विवेक श्रीवास्तव ने इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के बारे में बताया और कहा कि इसकी शैक्षिक सामग्री ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तथा NCERT के सीखने के प्रतिफलों के ऊपर तथा 21वीं सदी के कौशलों के ऊपर आधारित है। श्री विवेक श्रीवास्तव सर ने बताया कि कैसे हम कोविड महामारी के दौरान अपने बच्चों को ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के टूल्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक लाइव, गूगल मीट, जूम आदि के द्वारा शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। श्री विवेक श्रीवास्तव सर ने इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के विभिन्न शैक्षिक सामग्रियों को उपयोग करते हुए हम लोगों को बताया कि कैसे हम अपने बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। श्री अरबिंदो सोसाइटी के विभिन्न प्रशिक्षणों से मैंने अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया। मैं अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत हूँ। मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। हेलो, नमस्कार। मैं विपिन प्रताप वर्मा। मैंने स्नातक भूगोल और इतिहास विषय से किया है तथा साथ ही साथ प्रास्नातक भूगोल विषय से किया है, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से है। मैंने BTC ट्रेनिंग लखनऊ डाइट से की हुई है और मेरा शिक्षा क्षेत्र में अनुभव 2 वर्ष 3 माह का है।
मेरे बहराइच ज़िले की विशेषता ये है कि ये प्राकृतिक पर्यावरण से परिपूर्ण शुद्ध वन आच्छादित, यहाँ पे 5 नदियाँ घाघरा, सरयू, टेढ़ी इत्यादि हैं। यहाँ का कतरनिया घाट वन्य जीव विहार देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करता रहता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल चहलारी घाट, जो कि 4.25 किलोमीटर लंबा है, वो हमारे ही ज़िले में पाया जाता है, जो बहराइच से सीतापुर, शाहजहाँपुर, हरदोई, दिल्ली तक जाता है। बहराइच ज़िले में तमाम मंदिर, मस्जिद, ईसाई घर हैं। यहाँ पे चित्तौरा झील, जहाँ से टेढ़ी नदी का उद्गम है, वहाँ पे महाराजा सुहेलदेव का मंदिर बना हुआ है। महाराजा सुहेलदेव ने बहराइच पर बहुत दिनों तक राज किया। बहराइच ब्रह्मा जी की तपोभूमि भी कही जाती है। अब मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय शिवपुर देवरा है, जो कि एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, जो बहराइच ज़िले के सबसे उत्तरतम छोर पर स्थित विकासखंड नवाबगंज में स्थित है। मेरे विद्यालय में 164 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो कि सभी ग्रामीण प्रवेश से आते हैं। मेरी समस्या ये थी कि जब मैं विद्यालय में गया तो वहाँ पे विद्यालय में बच्चे बहुत कम आते थे, जो कि हकीकत थी, और उसका कहीं न कहीं अभाव था शिक्षक से संपर्क। ग्रामीण प्रवेश के बच्चे ज़्यादातर अपने माता पिता के साथ अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, लेकिन ये जो पढ़ाई का सिस्टम था वो उनको रास नहीं आ रहा था। वही किताबें, वही स्कूल। तो इसी बीच हमारी मुलाकात श्री अरबिंदो सोसाइटी के श्री विवेक जी से हुई। तो उन्होंने ZIIEI से जुड़ने के बारे में कहा। जब मैं उनसे जुड़ा तो उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में जो HDFC बैंक और ZIIE के द्वारा तमाम तरह के इनोवेटिव कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में बताया, और मैंने उनके साथ ZIIEI के कई प्रशिक्षण किए, जिससे हमें विद्यालय में बच्चों के संख्या बढ़ाने, उनके ठहराव और उनके अध्ययन में बहुत सुविधाएं मिली। फिर ZIEI इनोवेटिव पाठशाला का जो ऐप था उसको डाउनलोड किया, और उसमें से तमाम तरीके से लेसन प्लान, बच्चों के खेल से संबंधित, खेल खेल में शिक्षा, इस तरह की चीज़ें उससे हमें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से जो श्री अरबिंदो सोसाइटी है, HDFC के साथ कार्य कर रही है, ये शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नवाचार कर रही है। इस नवाचार को देखते हुए शिक्षा क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं, और ये जो जीरो इन्वेस्टमेंट शिक्षा है, ये शिक्षार्थियों के लिए, ग्रामीण प्रवेश के बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय के विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का अवसर मिला और सीखने का भी अवसर मिला। मैं अपने विद्यालय में EVS पढ़ाता हूँ। तो EVS में बच्चों को जब खेल खेल में पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ जाते हैं। इसका कारण हमारा इनोवेटिव पाठशाला ऐप है। इस ऐप के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के
खेल खेल से संबंधित खेल खेल में उनको शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं, जो कि बच्चों के साथ साथ हमें भी कारगर सिद्ध हो रहा है। प्रशिक्षण में मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का काम करने इस क्षेत्र में काम करने के लिए ZII के प्रशिक्षक श्री विवेक कुमार जी ने मेरी बहुत मदद की। मैं अपना आइडिया उनके साथ साझा करता था और वो मुझे उस आइडिया में सुधारने में सहयोग करते थे। इस प्रकार से मेरी जो समस्या थी वो हल हो गई और आज मेरा विद्यालय PS शिवपुर देवरा एक रोल मॉडल के रूप में नवाबगंज के कल्याणपुर न्याय पंचायत में उभर रहा है। और जब बात आएगी कि शिक्षा में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, तो मैं गर्व से कहता हूँ कि श्री अरबिंदो सोसाइटी जो HDFC बैंक के सहयोग से कार्य कर रही है, वो शून्य इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। धन्यवाद, धन्यवाद श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक। नमस्कार, मेरा नाम यास्मीन बेगम है। मेरी शैक्षिक योग्यता MA अर्थशास्त्र BTC है और शिक्षा क्षेत्र में मुझे 10 वर्ष का अनुभव है। मैं उत्तर प्रदेश के एक बहराइच जिले की रहने वाली हूँ, जो कि एक पिछड़े जिलों में गिना जाता है। मेरे जनपद की विशेषता ये है कि यहाँ पर सैयद सलार मसूद गाजी जी की दरगाह है। यहाँ पर हर वर्ष मई जून के महीने में बड़े पैमाने पर मेला लगता है। देश विदेश के लोग, विभिन्न प्रांतों के लोग यहाँ पर उनके दर्शन को आते हैं, अपनी मन्नतों को, अपनी मुरादों को पूरी करने आते हैं। हमारे जनपद बहराइच में कतन्या वन्य जीव विहार अभ्यारण्य भी है। हमारे जनपद में ही नानपारा कस्बे के रहने वाले एक धार्मिक इस्लाम धर्म के महात्मा भी बहुत जाने माने हैं, जिनको बुलबुले हिंद के नाम से देश विदेश के लोग में पहचाना जाता है। पिछड़ा होने के बावजूद भी हमारे जनपद की एक खास विशेषता ये भी है कि यहाँ के नवाचारी शिक्षकों के नवाचार की एक पुस्तिका अलग से प्रकाशित हुई है, जो कि श्री अरबिंदो सोसाइटी के इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं बहराइच जनपद के बहराइच के बलहा ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय भग्गापुरवा में प्रधान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 176 बच्चे हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के ही हैं। इस विद्यालय में मेरी नियुक्ति मार्च 2017 में हुई और उस वक्त विद्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, चाहे वो बच्चों का वेशभूषा हो, बच्चों में अनुशासन हो, विद्यालय का भौतिक परिवेश या शिक्षा का स्तर, सब कुछ बहुत ही दयनीय था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करें। पहले तो मैंने ही सोचा कि बच्चों को अपने तरीके से, जिस तरह मैं पहले से पढ़ाती चली आ रही हूँ, उन्हीं तरीके से पढ़ाना शुरू किया। कुछ हद तक मैंने काफ़ी सुधार भी किया, लेकिन और मेरे इन्हीं सुधारों को देखते हुए जब विद्यालय इनोवेटिव पाठशाला के लिए चुने जा रहे थे, तो उसमें मेरा विद्यालय भी चुन लिया गया। हालांकि मैंने इसका काफ़ी विरोध भी किया कि स्कूल इस कंडीशन में नहीं है, न उसका भौतिक परिवेश, न ही बच्चों का स्तर, कि उसको कहीं भी सेलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन फिर भी अधिकारियों की मंशा के अनुसार जब मैंने श्री अरबिंदो सोसाइटी के ZII के कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तब मुझे लगा कि बिना पैसे खर्च किए भी, शून्य निवेश से भी हम पढ़ाने के बहुत सारे तरीके में सुधार कर सकते हैं। मैं बहुत सारे नवाचार करती थी, लेकिन इतने नवाचार को करने के लिए मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसकी जितनी भी
प्रशंसा की जाए कम है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने हर विषय के विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझाया गया कि कैसे अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों में गतिविधि को शामिल करना चाहिए, किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाकर उसके लेसन प्लान इतने अट्रैक्टिव होते हैं, किस तरह से हम एक पाठ को बच्चों की पुनरावृत्ति के द्वारा उनके कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला का ये लेसन प्लान ZII के इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने तरीके मुझे इतने अच्छे लगे कि जब से आज तक मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के हर कार्यक्रम से जुड़ी रहती हूँ। मैं उन्हीं के तरीके से बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, मुझे एक किसी भी कार्य को करने की जो दिशा होती है वो मिल गई। फिर मैंने बच्चों को उसी के तरीके से उन्हीं के दिशा निर्देशों से पढ़ाना शुरू कर दिया। इनोवेटिव पाठशाला के पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने ये समझा कि एक पाठ को, एक अध्याय को, विभिन्न विषयों के विभिन्न अध्यायों को हम कितने तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कितने तरीके से सिखा सकते हैं। जैसे कि ग्रिड गेम हो गया, कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गई, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, चित्रकला पद्धति के माध्यम से हो, चाहे जो गलत चार्ट पद्धति के माध्यम से हो। ऐसे बहुत से हैं आज का अध्यापक या उपस्थिति में नवाचार, ऐसे बहुत सारे नवाचार हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को उनके कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से इतना क्लियर कर देते हैं कि वो भूल ही नहीं सकते हैं उस पाठ को। इनोवेटिव प्रशिक्षण का मुझे यही फ़ायदा मिला कि मेरे दिमाग में जो भी गतिविधियां चल रही थी, जो कुछ भी उन्हें कैसे हम क्रियान्वित कर सकें, सही दिशा निर्देश के इस प्रशिक्षण से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये मिला कि मेरे दिमाग में जो भी गतिविधियां रहती थी या जो भी नवाचार रहते थे, जिन तरीक़ों से मैं पढ़ाती थी बच्चों को, कैसे मैं उसे सही तरीके से कैसे बच्चों के बीच में ला सकूं, कैसे वो दिशा निर्देश मुझे मिला, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिला। मुझे अरविंदो सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। फिर चाहे वो इससे स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चला अरविंदो सोसाइटी का, या इनोवेटिव पाठशाला का प्रोग्राम हो, या एग्जीबिशन का प्रोग्राम हो, मैं सभी में पार्टिसिपेट भी करती हूँ क्योंकि मुझे श्री अरविंदो सोसाइटी के सारे प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी इस लॉकडाउन के समय में जब बच्चे विद्यालय से दूर हैं तो श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा चलाया गया प्रोग्राम अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिससे हम बच्चे विद्यालय नहीं आकर भी किस तरह से हम उन्हें शिक्षा से जोड़ कर रख सकते हैं और बहुत ही रोचक तरीके से इसमें हर जो भी पाठ है, जो भी लेसन, जो भी सेशन होता है, जो भी लेसन, जो भी पाठ है, हमारे प्रशिक्षक श्री विवेक सर द्वारा पढ़ाया जाता है और वो इतना रोचक रहता है। तो सोचिए जब हम अध्यापक इतनी रोचकता के साथ पढ़ते हैं तो बच्चे कितनी रुचि लेंगे उसमें। हमारे प्रशिक्षक महोदय श्री विवेक श्रीवास्तव जी हम लोगों की बहुत हेल्प भी करते हैं। जब भी हमें कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आइडियाज़ या कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती है, हम उनसे वार्ता करके अपनी समस्या का समाधान करते हैं। वो इतने अच्छे से हर बात को क्लियर करते हैं, समझाते हैं कि कोई भी सवाल रह ही नहीं जाता। जब हम अध्यापक का सवाल नहीं रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाता है, तो सोचिए बच्चे कितने अच्छे से, कितने मज़े से पढ़ेंगे, कितना उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ जुड़कर, ZII के कार्यक्रम के साथ जुड़कर मैंने अपनी सभी समस्याओं का हल पा लिया है। मुझे आज हमारे यहाँ मिशन प्रेरणा की योजना चल रही है, उसके भी लेसन प्लान बन रहे हैं, लेकिन मुझे इनोवेटिव लेसन प्लान से अच्छा कोई लेसन प्लान लगता ही नहीं है। शायद मुझे खुद बहुत ही पसंद है, मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ इसकी वो कम है। अब मेरा विद्यालय इन्हीं सब उपलब्धियों के बाद श्री अरविंदो सोसाइटी से जुड़ने के बाद, मेरा विद्यालय इनोवेटिव पाठशाला बनने के बाद मेरा विद्यालय आदर्श विद्यालय भी बन गया है और
मेरे ब्लॉक में जो विद्यालय डी ग्रेड में आता था, अब वो मेरा विद्यालय A+ ग्रेड में आता है, चाहे वो भौतिक परिवेश से हो या बच्चों के शिक्षा के स्तर से हो। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक को ये मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने प्रशिक्षक महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा इस मंच से जुड़ी रहूँ। इस कोविड-19 में जब शुरू हुआ तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण था और पहले हम लोग जो चाह रहे थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिक्षकों को और बच्चों को आपस में जोड़ा जाए, वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये संभव हो सका इस कोविड-19 के टाइम में। इस कोविड-19 के टाइम में बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया और जिन बच्चों के यहाँ मोबाइल का वो नहीं था, उनके पास सुविधा नहीं थी, डेटा की सुविधा नहीं थी, फ्री नंबर जारी किया गया। वो कीपैड वाला मोबाइल, उसके लिए बच्चा उस पर फोन करके और उसमें कहानी सुन सकता था, पढ़ सकता था, इस तरह से। और यहाँ तक कि अगर किसी के पास कीपैड मोबाइल भी नहीं था तो वो DD1 चैनल और रेडियो के माध्यम से उसको सुन सकता था। उसके बाद क्या हुआ कि वर्कशीट का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। टीचर घर घर जाकर के बच्चों को काम भी देते थे और वर्कशीट पर उसका गणित और भाषा आदि का ज्ञान भी जांचते थे। इस तरह से हम लोगों ने कोविड में बच्चों को और शिक्षकों को आपस में जोड़ करके रखा है। ये इनोवेटिव प्रोग्राम अरविंदो सोसाइटी का बहुत ही अच्छा है, जिससे शिक्षकों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक सहयोग किया है और मेरे जनपद बहराइच से कई शिक्षकों ने इसमें पुरस्कार भी प्राप्त किया है। आप द्वारा बॉम्बे में एक इनोवेशन किया गया था, वहाँ पे मेरे जनपद के सबसे ज्यादा शिक्षकों ने जो है उसमें भाग लिया था। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही अरविंदो सोसाइटी शिक्षकों का उत्साहवर्धन करते रहे। धन्यवाद सर आपके सराहना के लिए। श्री अरविंदो सोसाइटी ने सर अगला कदम है, हमने 300 जिलों के अंदर रोल मॉडल स्कूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कार्यक्रम शुरू भी किया गया है। तो इसमें सपोज एक स्कूल को रोल मॉडल बनाएंगे, रोल मॉडल जिसको देखकर बाकी स्कूल्स भी इंस्पायर हों। तो क्या लगता है कि आपको क्या ऐसी गतिविधि या इस प्रयास से शिक्षा में कुछ उन्नति हो पाएगी? ऐसे मैं तो अरविंदो सोसाइटी का ये रोल मॉडल जो आप करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है। मैं चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और मेरे जनपद में अभी आपने रोल मॉडल के लिए अगर एक स्कूल सिलेक्ट किया तो आगे चलकर आप कम से कम 100 स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। ये पहल आपकी अच्छी है, क्योंकि बच्चे आजकल जो है ऐप से अर्निंग करना भी चाह रहे हैं। वो अर्निंग नहीं होती बल्कि उनका एक माइंड होता है कि मैं इसे जीत सकता हूँ, इस तरह से। और ये आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। ये बच्चों में ऐप जो है काफी सराहनीय रहेगा और काफी काम करेगा। आगे चल के बच्चे इस पे काफी मतलब धनराशि जीत भी सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं सक्रिय रह करके बच्चे इस ऐप पर। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अरविंदो सोसाइटी की तरफ से जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनको सहयोग प्रदान करते हुए बच्चों में और शिक्षकों में बच्चों और शिक्षकों को आपस में जोड़ करके रखें और प्रोग्राम जो भी होते हैं वो अपने पढ़ाते हुए अपने क्षेत्र में आगे ले जाएं।